Okay, hello everyone. In our last lecture, we have started the chapter number 13, amines. Okay, and we have seen introduction of amine and classification of different amine, that is primary, secondary, and tertiary. So, how we can define amine? Okay, amines are the compounds or organic substances when we replace one hydrogen in ammonia, one or more number of hydrogen from ammonia. So we can derive the amines. Here you can see example of primary amine, secondary amine and tertiary amine. Okay, ये already complete किया है हमने. Next, classification is on the basis of number of alkyl group present in amine, structure of amine. So in primary amine there is one alkyl group. In secondary the number of alkyl group will be 2. In tertiary amine there are 3 number of alkyl group and no hydrogen will be there in tertiary amine. But in secondary amine 1 hydrogen should be there. In primary amine 2 hydrogen will be there and ammonia NH3. Okay, so primary, secondary and tertiary amine. Next, okay, so if alkyl group is present or aliphatic chain is present here, so it is called aliphatic amine. Okay, you can see the carbon is attached to NH2 group. Okay, the carbon is attached to NH2 group, so it is primary amine. Okay, secondary amine, these two alkyl groups are attached to nitrogen atom containing one hydrogen. So it is called as secondary amine. Yes, it is called as secondary amine. And tertiary amine, there are 3 alkyl group, CH3, CH3 and this one. Yes, the number of hydrogen 1, 2, 3, 4, propyl group. Okay, next, this is an example of aryl amine. Okay, aromatic ring is there, so you can call as aryl amine. The IUPAC name for this amine is 2,4,6 tribromoaniline. Okay, 2,4,6 tribromoaniline. I am just revising the last previous lecture. Okay, so you can understand, because the IUPAC nomenclature is very important. While you are writing the reaction, you should write the name of reactant molecule or name of product molecule. Okay, or identification is important. Whenever the question is coming, the name is coming, you are able to draw the structure of that molecule. Okay, next is N-ethyl and methylaniline. Structure of aniline is aromatic ring containing NH2 group. Okay, so here 2 hydrogen atom is replaced by ethyl and methyl group. Okay, okay, so here are some example of common name and IUPAC name. We have seen the common name and IUPAC name for primary amine. Now just revise for secondary and tertiary amine. Okay, in secondary amine 2 alkyl group may be same or different. In first example the 2 alkyl groups are same, CH3 and CH3. ठीक है. In second example NH is attached to 2 different alkyl group, that is methyl and ethyl. Yes, so how we can write the IUPAC name? Common name is easy to write. Yes, you can easily write ethyl methylamine. Okay, but in IUPAC name first you have to write N. Okay, N is for nitrogen, because methyl and ethyl is attached to nitrogen atom. Now which R group you should which R group you will write first? Okay, so smallest R group, that is methyl. In second example, that is methyl, you will write first. Then the longest chain, that is ethane, you will write. Okay, ethane. N-methyl ethanamine. Okay, N-methyl ethanamine. N लिखना क्यों जरूरी है? N इसलिए क्योंकि इससे आइडेंटिफाई होगा कि अल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैच्ड है. पहले के हमने इसमें देखा था एसिड के एग्जांपल्स में हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर रहे थे और अल्काइल ग्रुप लगा रहे थे. ठीक है, और कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप था. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? नाइट्रोजन के ऊपर है अल्काइल ग्रुप. यस, तो नाइट्रोजन को मेंशन करना जरूरी है. एन मिथाइल इथेनामाइन. ये जो है डाइफिनाइल अमाइन, फिनाइल ग्रुप is there, C6H5, C6H5, diphenylamine. Oh, okay, so one phenyl, you can consider one phenyl as a substituent. Okay, and another one is
benzene you can write N-phenyl benzenamine. Okay, next is tertiary amines. Tertiary amine में two methyl group, two alkyl group you will consider as a substituent. Okay, and one is a parent alkane or a parent amine, N-dimethyl methenamine. Yes, all three substituent, all three groups, alkyl groups are same. So you can write as trimethylamine in common name, and IUPAC name is N-dimethylamine. Okay, it is an tertiary is an example of aromatic amine. This tertiary amine is an example of an aromatic amine. Yes, N-dimethylanilene and N-dimethylbenzenamine, IUPAC nomenclature. So IUPAC nomenclature is important, naming the compound is important. Okay, next, these are all our rules. We have already seen this rules. Okay, nomenclature, physical properties is done. Okay, preparation of amine, we have started the preparation of amine, but the reaction, first reaction we will see now. First reaction, Gibryl thalamide synthesis. Okay, what is this reaction now? So this reaction is used for preparation of primary amines only. Okay, primary amine. So thalamide is little bit complicated structure. Okay, but on practice you will able to draw the structure. Okay, thalamide on treatment with ethanolic potassium hydroxide forms potassium salt first. Okay, which on heating with alkyl halide. Okay, the two important reacting molecule here is thalamide and another one is alkyl halide. Okay, alkyl halide, okay, RX, followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. Okay, aromatic primary amines cannot be prepared by this method. Okay, because aryl halides do not undergo nucleophilic substitution with anion formed by thalamide. Yes, okay, अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में आपने अल्किल हैलाइड का एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं CH3Cl. ओके, CH3Cl. और अराइल हैलाइड का एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ अराइल हैलाइड. यस, क्लोरोबेंजीन एग्जांपल ऑफ अराइल हैलाइड. तो क्लोरोबेंजीन में क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन में क्या होगा कि क्लोरीन और कार्बन, बेंजीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो है डबली बॉन्डेड कैरेक्टर फॉर्म होगा. ओके, बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन और डिफरेंट इफेक्ट. तो इसकी वजह से वो बॉन्ड को ब्रेक करना और क्लोरीन को हटाना डिफिकल्ट है. सो दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट प्रोसीड cannot proceed in aromatic primary amines. Okay, or aromatic primary amines are not formed. Okay, so you can see the mechanism to understand the reaction. Okay, the structure of thalamide is this: benzene ring. Okay, benzene ring में how many hydrogen is there? 1 2 3 4. Okay, 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से. कार्बोनिल कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमाइड. Now from where this thalamide is coming from, or from where you can form the thalamide structure. तो thalamide structure आप थैलिक एसिड से बनाएंगे. थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन रिंग अटैच टू 2 कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप. दैट इज स्ट्रक्चर होगा बेंजीन. ओके, और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड OOH एंड C डबल बॉन्ड OOH. ओके, तो C उसके साथ अमोनिया का रिएक्शन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमको थैलेमाइड मिलेगा. अब थैलेमाइड में अमाइड का फंक्शनैलिटी है. यू कैन सी हियर अमाइड, कार्बोनिल ग्रुप से अगर डायरेक्टली NH2 अटैच है नाइट्रोजन तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है. यस, तो इसको हम थैलेमाइड बोलेंगे. इन प्रेजेंस ऑफ बेस इट विल फॉर्म सॉल्ट फर्स्ट. ओके, यहाँ पे लिखा है C, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड. Salt first. This salt will react with alkyl halide RX, CH3Cl. Okay, X halogen atom.
टू फॉर्म एन अल्काइल थैलेमाइड. एन अल्काइल थैलेमाइड ये जो है सिर्फ क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ आर ग्रुप. आपको याद रखने के लिए क्या करना है, ये हाइड्रोजन को हटा के पहला स्टेप होगा आर ग्रुप से रिप्लेस होगा और क्या फॉर्म होगा, एन अल्काइल थैलेमाइड. यस. नाउ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना है थैलेमाइड का, तो स्ट्रक्चर में जो होगा यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे दोनों भी. ओके क्योंकि हमको RNH2 अलग करना है, प्राइमरी अमाइन फॉर्म करना है. ओके यहाँ पे मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन. ओके और जो बेस आप ऐड करेंगे वो आयन अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड होगा, ONA प्लस ONA प्लस. ठीक है, तो मेन जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा वो ये है. सो the reaction is carried out in this step. Okay, first the base will attack. Okay, salt formation is there, this salt will attack on alkyl halide and an alkylated product is formed. Then an alkylated product with hydrolysis, alkaline hydrolysis, to form a primary amine. Yes, to form a primary amine in this compound. Okay, जो आर ग्रुप हम लेंगे, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल इथाइल CH3Cl लिया तो ये आर की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3. यस, CH3NH2 मिथेनामाइन. ओके, तो जो लेंगे उसका करस्पॉन्डिंग हमको अमाइन मिलेगा. यहाँ पे इस पे अल्किल हैलाइड के करस्पॉन्डिंग उसका अमाइन मिलेगा. एरोमेटिक हम नहीं ले सकते, तो इसमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही फॉर्म हो सकता है. ठीक है, प्राइमरी अमाइन ही ये रिएक्शन के लिए, इसीलिए हम रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, अमाइन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. और तीनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है बिकॉज नंबर ऑफ हाइड्रोजन की नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है अलग अलग है इस पे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. This reaction is also used for preparation of amine. Okay, the Hoffman is a scientist who gave this reaction. Okay, degradation means decreasing the number of carbon. Okay, degradation, the word, you can remember this reaction by its name itself. Yes, Hoffman bromide degradation reaction. क्या हो रहा है, रिएक्शन में ब्रोमीन है, रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है. ऑब्वियसली फॉर्मेशन ऑफ अमाइन के लिए है रिएक्शन, तो अमाइन ही फाइनल प्रोडक्ट होगा. ओके, डिग्रेडेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, एक कार्बन कम लेना है. ठीक है, रिएक्शन हॉफमैन डेवलप अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस बाय ट्रीटिंग एन अमाइड विथ ब्रोमीन इन एक्वियस और इथेनॉलिक सोल्यूशन. डिफरेंट सॉल्वेंट यूज किया है फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. Br2 लेना है आपको. ओके, Br2 इज देयर एंड बेस के प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में. इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और अराइल ग्रुप. देखो हमने थैलेमाइड में अराइल ग्रुप नहीं है. यस, हॉफमैन ब्रोमाइड में हम अराइल अमाइन भी फॉर्म कर सकते हैं. तो अल्काइल और अराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन of amide to nitrogen atom. The amine so formed contains one carbon less than that present in amide. Okay, so reaction is start from amide. Then amide reacts in presence of Br2 and NaOH, reacts with Br2 and NaOH. Okay, it will form RNH2, primary amine is formed here. Okay, तो अराइल हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, और जो लिया उसके अकॉर्डिंगली NaBr, H2O वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड सोडियम कार्बोनेट, सॉल्ट फॉर्मेशन. ओके, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन. यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, लेकिन हमने ये एग्जाम्पल में जो है बेस यूज किया NaOH. आप दूसरा भी बेस यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. ओके, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, सी फर्स्ट बेस ऐड कर रहे हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन. ओके, सो नाइट्रोजन इज कंटेनिंग अ लोन पेयर. दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन Br2. ओके, Br2 का पोलैरिटी कैसा रहेगा, देखो ये भी ब्रोमीन पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. यस, सो द ब्रोमीन एटम कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस नाइट्रोजन टू फॉर्म एन ब्रोमाइड प्रोडक्ट दिस. ओके, and Br minus will remove. Then next hydroxide ion comes and abstract the hydrogen. Okay, this is very important step. ब्रोमीन तो हमको चाहिए नहीं नाइट्रोजन पे, तो यहाँ से हमको रिमूव करना है. और आर फाइनल प्रोडक्ट में हमको RNH2 मिल रहा है, तो माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस हियर. ओके, आर इज गोइंग टू नाइट्रोजन एटम, सी.
migration is taking place. Yes, R is migrated towards N, and bromine is replaced. Okay, bromine is breaking his bond and formation of this molecule. This is the yes, yeah, there should be a double bond should be there. Yes, R डबल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था आइसोसाइनेट. ये स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा N डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O. ओके, इस तरह से स्ट्रक्चर आइसोसाइनाइड का फॉर्म हो रहा है. देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N फॉर्म होगा और इस पे R, क्योंकि ब्रोमीन निकल रहा है. ओके, उसके बाद क्या हो रहा है? यस, फिर से हाइड्रोक्साइड. अभी हमको क्या करना है, एक कार्बन लेस करना है, मतलब हमेशा जो है कार्बोनिल कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन निकल जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ CO2 हियर. ओके, इसको रीअरेंज करके आप ये प्रोडक्ट लिख सकते हैं CO2 RNH2. तो आपको सिंपली याद क्या रखना है कि ये R ग्रुप और दिस NH2, आपको सिंपली दोनों को ज्वाइन करना है और बीच में से कार्बोनिल कार्बन को हटाना है. सिर्फ बीच में से इस कार्बोनिल कार्बन, आर की जगह एरोमेटिक रिंग हो सकता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, प्राइमरी अमाइन फॉर्म करेगा ये, और उसका मैकेनिज्म है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट. ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, आप इसको फॉलो करो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, अमोनोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड. This reaction is I think this reaction, yes, this reaction is completed. Okay, ammonolysis is completed in previous lecture. Okay, so ammonolysis में क्या होता है, mixture of primary, secondary and tertiary amine मिलता है. Okay, if we are using alkyl halide in large concentration, large quantity. Reduction of nitrile. ओके, स्टीफन रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट हियर. SnCl2 के साथ जब रिएक्शन होगा, अगर SnCl2 है तो पार्शियल रिडक्शन होगा, ये मैंने बताया था, आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा सिंपली NO2 का NH2 होगा. ये भी हमने कंप्लीट किया रिएक्शन. ओके, नाउ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज हियर chemical properties of amine. Okay, chemical properties of amine. So अपने अमाइन का अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल देखा है. ओके, तो नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और NH बॉन्ड होता है. तो ये केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन, अमाइन रिएक्शन क्यों शो करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन क्यों केमिकल रिएक्शन में जाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन over the nitrogen atom makes amine reactive. Why amines are reactive? There is a bond between nitrogen and hydrogen atom जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है. यस, तो इजीली ब्रेक होता है. नेक्स्ट जो है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, वो डोनेट कर सकता है लोन पेयर अपना. ठीक है, तो अमाइन का नेचर क्या है, बेसिक है, एसिडिक है, वो भी हम देखेंगे. यस, सो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब क्या होना चाहिए, इट शुड बी बेसिक. यस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन एटम ऑल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाइन. यस, द नंबर ऑफ, देखो कुछ रिएक्शन जो है प्राइमरी अमाइन कर पाते हैं, कुछ रिएक्शन जो है सेकेंडरी अमाइन कर पाते हैं. तो कोर्स ऑफ रिएक्शन कितना कंप्लीट होगा, रिएक्शन कौन परफॉर्म करेगा, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे भी डिपेंड करता है. वो कैसे है, कौन सा एग्जाम्पल है, वो हम देखेंगे. यस, दैट इज वाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर differ in many reaction. Yes, moreover amines behave as a nucleophiles due to the presence of lone pair. Okay, electron pair. तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, हमने बताया था. न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. ओके, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब वो लेविस बेस है. ओके, तो फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ मिनरल एसिड फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट shows that these are basic in nature. Okay, मिनरल सॉल्ट क्या है, HCl है, HX के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सिंपल रिएक्शन है, अमाइन रिएक्ट्स विथ HI टू फॉर्म NH3+. ओके, NH3+ फॉर्म करेगा, मतलब वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेस है. यस, ये हमने कौन सा आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में बेस का डेफिनेशन पढ़ा था ये.
ओके, जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस कहते हैं. अमाइन have an unshared pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as a Lewis base. Yes, basic character of amine can be better understood in terms of their Kb and pKb value. Lewis base का definition क्या है? Lewis base, the species which can donate its electron pair, it is called Lewis base. तो amine के पास electron pair है, electron donate कर सकता है, तो उसको हम Lewis base बोलेंगे. और Kb के लिए, एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं? Ka and pKa. For base it is written as Kb and pKb. Yes, okay. Now larger the value of Kb or smaller the value of pKb, strong is base. Okay, ये सेम है, ये हमने जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पढ़ा था सेम है, सिर्फ Kb है द बेसिक कैरेक्टर है अमाइन का. तो Kb जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, और pKb जितना ज्यादा होगा उतना वीक बेस. ये इनवर्स रिलेशन में है. ओके, ये जो है pKb का वैल्यू इनवर्स रिलेशन में. एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम. यस, अब अगर हम अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन को कंपेयर करते हैं, अमोनिया और एलिफेटिक अमाइन को कंपेयर करेंगे तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो लेस बेसिक है देन एलिफेटिक अमाइन. अब एलिफेटिक अमाइन में क्या होता है? सी, एलिफेटिक अमाइन में जो होंगे ये आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, है ना. और अमोनिया मॉलिक्यूल सिंपली क्या होता है? NH3. NH3 में कहीं भी अल्काइल ग्रुप नहीं है. और एलिफेटिक अमाइन फॉर एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल लेते हैं मिथाइल अमाइन. मिथाइल अमाइन में एक आर ग्रुप है. आर ग्रुप क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? नाइट्रोजन पे इंक्रीज करेगा. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम अमोनिया और अल्काइल अमाइन में कंपेयर करते हैं तो अमोनिया जो है लेस बेसिक है. ठीक है, अल्काइल अमाइन से. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यस, एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको. अल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम. ऑन अदर हैंड एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस देन अमोनिया. अगर अमोनिया से हम एरोमेटिक अमाइन को कंपेयर करेंगे तो ये वीकर बेस है. द रीजन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप. NH2 का जो है इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे इसके कि क्यों वो लेस बेसिक है. यस, you may find some discrepancies while trying to interpret the Kb value of amines on basis of plus I minus I effect. तो यहाँ पे जो है अमाइंस को जो है स्टेबल कौन करेगा? प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. यस, अब देखो अमाइन को हम कौन सा अमाइन ज्यादा बेसिक है, कौन सा अमाइन लेस बेसिक है, वो हम दो फेज में डिसाइड करते हैं. एक तो उसका एक्वियस फेज एंड नेक्स्ट फेज जो होगा उसका गैसियस फेज. ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे कुछ pKb वैल्यू दी है. जब भी एग्जाम में आपको दिया रहेगा K का वैल्यू नहीं होगा, मोस्टली pKb का वैल्यू होगा. सॉरी, Kb. यस, A नहीं, एसिड्स. A इज फॉर एसिड एंड Kb इज फॉर बेस. तो हम यहाँ पे pKb लेंगे. तो जब भी दिया होगा pKb का वैल्यू होगा तो आपको pKb जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बेस होगा. मीथेन अमाइन का सबसे कम है वैल्यू. ओके, और डाई एनिलीन का एरोमेटिक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये वीक बेस है और ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं? आर ग्रुप, एन मिथाइल मीथेनामाइन. तो इसका इंक्रीज करेंगे तो इसका pKb वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. दो आर ग्रुप आ गए तो प्लस इफेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डोनेटिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है. यस, तो ये टेबल से आप पता लगा सकते हैं pKb वैल्यू. pKb वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, pKb वैल्यू गिवन रहेगा, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा लेस बेसिक है, मोर बेसिक है. यस, ओके. नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप इट R pushes electron towards the nitrogen. This make the unshared pair of more available for sharing with proton of acid. ये तो अभी बताया आपको मैंने. Moreover, substituted ammonium ion form of amine gets stabilized due to
dispersal of positive charge of plus I effect on alkyl group। ओके, अल्काइल अमाइन में ये सारे रीजंस है। ओके, अब गैशियस फेज में देखो क्या है, टर्शियरी अमाइन जो है, 3 अल्काइल ग्रुप हो गए टर्शियरी अमाइन में, तो तीनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे टर्शियरी अमाइन में। यस, देखो टर्शियरी अमाइन का स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी अमाइन जो होगा मोर बेसिक होगा, देन सेकेंडरी अमाइन, देन प्राइमरी अमाइन एंड देन अमोनिया। यस, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप होंगे। एक्वियस फेज में अब सिर्फ प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा, एक्वियस फेज में सॉल्वेशन इफेक्ट होगा वाटर का, बॉन्डिंग करेंगे ना मॉलिक्यूल, लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। ओके, और स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कितना बड़ा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उतना उसको डिफिकल्टी होगी रिएक्शन के लिए। यस, तो इस ये सारे इफेक्ट से हमको डिसाइड करना पड़ेगा डिफरेंट। तो यहाँ पे जो होता है यस, टर्शरी अमाइन के बाद हम सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, देन प्राइमरी, फिर अमोनिया। तो ये जो है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एक्वियस फेज में स्टेबिलिटी जो है डिफर करेंगे अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो। ठीक है, तो गैशियस फेज के लिए आप याद रख सकते हैं। और एनिलीन तो सबसे एरोमेटिक अमाइन तो सबसे वीक बेस है। यस, ओके, ये भी सब जो ये सारे पॉइंट्स आपको डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। यस, ओके, नाउ ये क्या है, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एलिफेटिक अमाइन शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी। ओके, तो ये एक्वियस फेज में आपको सिर्फ एक बेसिक ऑर्डर याद रखो आप, कौन कौन से इफेक्ट है, जो सॉल्वेशन इफेक्ट है एक्वियस फेज में, स्टेरिक हिंड्रेंस है, और ये इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमको अलग अलग पहले आएगा प्राइमरी, देन टर्शरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। यस, नाउ ये इंपॉर्टेंट है, पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हाई। It is because in aniline or other aryl amine, the NH2 group is attached directly to the benzene ring. In case of substituted aniline, it is observed that the electron releasing group like OCH3, CH3 increase the basic strength, whereas electron withdrawing group like NO2, SO3H, COOH decreases basicity. Yes, okay, क्या होगा देखो, एनिलीन का pKb वैल्यू सब्सटीट्यूटेड एनिलीन से कैसे हाई है। यस, पीकेबी वैल्यू हाई है एनिलीन का, मतलब वो वीक बेस है। यस, ओके, एनिलीन जो है अराइल अमाइन का एग्जांपल है जिसपे NH2 ग्रुप होता है। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, अपनी लोन पेयर डोनेट करता है, उसकी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहती है एनिलीन की। और ऑर्थो और पैरा पोजिशन में देखो आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पे, स्ट्रक्चर में ऑर्थो पे है, इस पोजिशन में पैरा पे है, 2 ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से ये एनिलीन जो होता है इसकी लोन पेयर बिजी होती है कॉन्जुगेशन में विद दिस बेंजीन रिंग। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं कर पाता है, मतलब वो वीक बेस होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमने अटैच किया तो उसकी स्ट्रेंथ और डिक्रीज हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच्ड है तो ये क्या करेगा, अपना माइनस आई शो करेगा इफेक्ट। ओके, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा और लोन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो और अगर डोनेटिंग वाला ग्रुप शो किया तो थोड़ी सी उसकी बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज होती है। ठीक है, तो असाइलेशन, नेक्स्ट है असाइलेशन। असाइलेशन में क्या होगा, असाइलेशन में आपको यस एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है। Alkane amine when reacts with acid chloride in presence of base it will form an amide. Okay, amide क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो NH2। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है इथेन अमाइन का, इथेन अमाइन इज C2H5 ओके NH2, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। इधर एसिड क्लोराइड का एग्जाम्पल है CH3, C डबल बॉन्ड हो Cl, बेस के साथ रिएक्शन होगा और ये क्या फॉर्म करेगा, एन इथाइल इथेनामाइड। सिंपली आपको क्या करना है, क्लोरीन एटम को रिप्लेस करना है और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन अटैच करके NRH, C डबल बॉन्ड एज इट इज, R ग्रुप R डैश एज इट इज। ओके, नाइट्रोजन एंड RH अटैच करना, मतलब क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है विथ अमाइन और क्या फॉर्म कर रहा है, N इथाइल इथेनामाइड इस रिएक्शन में। ओके, सेकेंडरी अमाइन यहाँ पे फॉर्म हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करें तो NN डाइथाइल इथेनामाइड फॉर्म होगा। ओके,
तो ये रिएक्शन इजी एसाइलेशन रिएक्शन जो एसाइल एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है और अमाइड फॉर्म करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन क्या होगा? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइड्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट. Okay, this is very important product. Okay, aromatic diazonium salt is very important here, which begins unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. Aromatic amine reacts with, okay, this is aromatic, nitrous acid at low temperature to form diazonium salt. देखो नाइट्रस एसिड के लिए क्या यूज करते हैं रिएजेंट? NaNO3 प्लस HCl. पहले ये दोनों रिएक्ट होके HNO2 देंगे, ये HNO2 रिएक्ट करेगा अमाइन के साथ और इस तरह का कंपाउंड देगा डायजोनियम. ये एलिफेटिक डायजोनियम है, N2X रहा, RN2X पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या उसको हम बोलते हैं डायजोनियम. ओके, ये अनस्टेबल होता है. क्यों अनस्टेबल होता है? वो उसमें कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे कि बेंजीन जो है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट क्यों स्टेबल होता है. ठीक है, और ये जो अनस्टेबल होता है इसलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट हमको मिलता है अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है. ठीक है, बेंजीन रिंग है, अगर एरोमेटिक अमाइन है और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होने पर हमको सोडियम क्लोराइड और H2O मिलेगा, यस, और डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा. नेक्स्ट रिएक्शन, ओके, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस फॉर्म हाईली अनस्टेबल अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट. अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल देन aryl diazonium salt, arene, okay, arene diazonium salt. Here you can see the aromatic structure of or resonating structure of aryl diazonium salt. Okay, total number of structures are 4 here. Withdrawing effect शो कर रहा है N2. तो ये जो है रेजोनेटिंग ग्रुप की वजह से स्टेबल होता है. ओके, अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा रिएक्शन प्रोसीड होके अल्कोहल फॉर्म करेगा. ओके, नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इसके लिए आपको एरोमेटिक जो है एनिलीन का एरोमेटिक स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे ही इसका सब्सटीट्यूशन होगा. अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑर्थो पैरा पे क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज और वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा. ओके, तो ये हम रिएक्शन जो है ये और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.